class 12, another very important phenomena of wave optics is your interference of light. In this, we are going to discuss the mathematical part especially. First, some fundamental is required. Some fundamental that you have to understand, and after that we have to proceed towards a mathematical analysis of the interference, right? And what are the fundamentals? Number one, first fundamental is that wave. What is the meaning of the wave? We know in class 9 also. How we are going to represent the wave mathematically. In class 11 you had gone through wave can be represented as y is equal to a sine omega t, like that. Wave equation is there. In this wave equation, here a is the amplitude, omega is the angular frequency, t is the instantaneous time, and if having the phi plus phi, that means phi is a phase angle. That is a wave equation that we had gone through it, right? A is the amplitude and y is what? Instantaneous displacement. Any wave is represented by this a sine omega t plus phi or a sine omega t. If the phase angle is 0, wave start from the origin or the initial point, reference point, we have to write the a sine omega t, right? Second fundamental is your superposition principle. What is the meaning of superposition principle? If the one wave is represented by this wave 1, second wave is also coming in this way, and these two are superimposed, wave 2, then a different effect is being visible here. That effect is your we are going to discuss in the interference and diffraction. So here superposition means the overlapping. So according to the superposition principle, the resultant amplitude of the superimposed wave, यहाँ पर मान लेते हैं superimposed wave बना, जब superimpose हो गया, तो resultant amplitude should be equal to y1 plus y2, or y is equal to y1 minus y2, depends on the phase and the direction. So according to this vector sign, displacement is there. So what is this y? Y is the instantaneous displacement of the superimposed wave. दोनों वेव जब superimposed हो गया, एक हो गया, तब उसका डिस्प्लेसमेंट है y. और y1 क्या है? पहला वेव का डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. y2 क्या है? दूसरा वेव का डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, तो ये होता है सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है. नाउ कम ऑन टू द another point, another fundamental is your coherent waves or coherent source of light. Coherent sources of light. The waves, sources of light and coherent wave. What is the meaning of the coherent wave? Waves of same frequency or wavelength
and either in phase or have a constant initial phase difference. Coherent source, from the coherent source the coherent waves comes out. So what are the coherent waves? Waves of the same frequency or wavelength, and either in phase or have a constant initial phase difference. That's the definition of the coherent waves. Coherent waves comes out from the coherent sources of light. Right? These are the fundamental which you have to remember. Now, after this fundamental, then comes to the interference of light. Before coming to the interference, you remember some natural things. Like number one, you have observed that colored soap bubble. Soap bubble appears to be colored. Why? Second, if the water is falling on the road and the oil drop or the petrol is also there, then also we are going to see the Vibgyor color, the multicolor of that oil drop. Similarly, sometime we can observe multicolor of feather of the bird. The common phenomena, and these all are due to the interference. Interference means waves are superimposing and resultant effect is there, interference. Now comes to the point, the reason of these three are the interference. Now comes to the point, what is the meaning of the interference? Interference, the phenomenon of redistribution of light energy due to superposition of light waves from two coherent sources. That is a very, very important definition and important phenomenon. So what is the interference? Interference is a phenomenon of redistribution of light energy due to superimposition of the light waves from the two coherent sources. Say for example, here one wave 1 and wave 2 are superimposed. Wave 2 superimposed. Then what happens? The energy of the first wave and the second wave are redistributed. Superposition occurs and the redistribution of energy. Redistribution of energy takes place. And these two waves from the coherent sources. Which source? Coherent sources. Then this redistribution is known as the redistribution of the energy is known as the interference. Interference are of two types. Number one,
constructive interference, and number 2 destructive. We are going to discuss mathematically also constructive and destructive. Constructive, here only you have to understand what is the meaning of constructive. After superposition, if the intensity of light becomes maximum, that particular reason is the constructive interference. We can say at that reason the constructive interference takes place. And if after superposition intensity of light becomes minimum, then we can say destructive interference. So we can mathematically we can clear it or understand very easily if we are, but basic property of the mathematics is required. Interference in class 12 is totally based on the mathematical analysis, and to make it short, it is better to see the mathematical analysis now. तो अभी तक ये फंडामेंटल बताए, वेव्स, सुपरपोजिशन वेव ऑफ द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन y is equal to y1 plus y2, destructive superposition y is equal to y1 plus minus y2, coherent sources of wave of light, waves of same frequency or wavelength and either in phase or having a constant initial phase difference. Interference, the phenomenon of the redistribution of the light energy due to superposition of the waves, light waves from two coherent sources. The example, common natural example, colored soap bubble, multicolor of the feather of the birds, and the oil drop on the rainy season on the road, etc., etc. Now we are switching over to the mathematical analysis. I made the sheet, and on the sheet you have to understand slowly and slowly. That's a very, very important, and better is to give more concentration how the next step is being done. Another point is that phase difference. If the phase difference is lambda, in class 11 you had gone through, phase difference is lambda, the path if the path difference is lambda, phase difference is 2 pi. That you know in this particular diagram. We have discussed in electric current also, and in AC also. One wave, one cycle of the wave. Here, this is the lambda up from here to here, and lambda means the wavelength. That is the path difference, and the phase difference is 2 pi. That's 360. That you know, and we can interchange also. जो ज़रूरत है हम निकाल सकते हैं. अगर पूरा 2 पाई नहीं है, फेज डिफरेंस कुछ कम में, तो भी हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई, अगर पाथ डिफरेंस x है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, लाइक दैट. देन कम्स टू द, यहाँ तक अभी फंडामेंटल ही था. अब आता है YDSE. ये क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. एक थॉमस यंग करके एक साइंटिस्ट थे. एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किए थे. इसको शॉर्ट में YDSE बोलते हैं. यहाँ पर एक सोर्स लिए, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से वेव जा रही है, ये बन गया 2 कोहेरेंट सोर्स. ये दोनों कोहेरेंट सोर्स से भी लाइट निकल रही है यहाँ से. ये कोहेरेंट सोर्स नंबर 1, कोहेरेंट सोर्स नंबर 2. तो कोहेरेंट वेव ये दोनों सुपरइम्पोज हुआ है. सुपरइम्पोज होने पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम एक स्क्रीन रख देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिनिमम लाइट इंटेंसिटी, और एक तरह का रिंग टाइप का स्ट्रक्चर इस तरह का हमको मिल जाएगा. जैसे ये यहाँ ब्राइटनेस, यहाँ फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर इस तरह से कंटिन्यू ऐसे करके हमको एक पैटर्न मिलेगा.
तो दो कोहेरेंट वेव सुपरिम्पोज हुआ तो ऐसा रिजल्ट मिलता है हमको। और ऐसा रिजल्ट मिला तो यंग्स बोले जहाँ पर ये, तो हम क्या देख रहे हैं कि लाइट जो है वो कहीं पर ब्राइट हो गया, कहीं पर डार्क हो गया रिजल्टेंट सुपरिम्पोज्ड वेव में। जहाँ ब्राइट हो गया इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया, जहाँ डार्क हो गया इंटेंसिटी मिनिमम हो गया। इसका मतलब क्या है, दोनों वेव में, दोनों सोर्स ऑफ लाइट में एनर्जी था, ये एनर्जी सुपरिम्पोज होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द इंटरफेरेंस। ऐसा नहीं कि यहाँ डार्क हो गया तो यहाँ का एनर्जी गायब हो गया, ये एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होके ब्राइट वाला पार्ट में आ गया। इस तरह से ये यहाँ बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, इस तरह का इंटरफेरेंस हमको यहाँ मिलते जाता है, इस तरह का रिंग हमको मिलते जाएगा। ठीक है, अब यही वाला चीज़ जो ये YDSC का और इंटरफेरेंस का जो, अब मैथमेटिकल एनालिसिस में हम लोग आते हैं, बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्स लिए, यहाँ वेव ऐसे सुपरिम्पोज हुआ, पहला इधर गया, दूसरा वाला ऐसे। पहला का हम लोग ले लिए A एम्पलीट्यूड है, दूसरा का B एम्पलीट्यूड है, दोनों यहाँ पर क्या हुआ, सुपरिम्पोज हुआ। तो पहला और दूसरा का मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे, वेव का इक्वेशन y1 मान लेते हैं, फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट था इंस्टेंट y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी ले लिए, और y2 का हम लोग ले लिए b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हम ये लेके चल रहे हैं कि दोनों वेव के बीच फेज का कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस है फाई। ध्यान से देखना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार ध्यान से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सो सुपरिम्पोज्ड हुआ, ये यहाँ पर सुपरिम्पोज्ड हुआ, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा सुपरिम्पोज्ड वेव का, तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब y1 का जो वैल्यू है, y2 का जो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। जो वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b। अब हम क्या किए यहाँ पर, साइन a प्लस b के फॉर्म में एक्सपैंड कर दिया, b साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, साइन a प्लस b उसके फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कि साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो साइन ओमेगा टी को कॉन्स्टेंट कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस बी कॉस फाई, ब्रैकेट में इतना बचा, प्लस कॉस ओमेगा टी b साइन फाई, ये यहाँ पर, ये b यहाँ पर भी था, इसका ब्रैकेट में था, तो b साइन फाई, इतना मेरा आया। अब ये जो इक्वेशन मेरा यहाँ पर आया, अब इसको हमको छोटा करना है। छोटा करने के लिए देखिए a प्लस बी कॉस फाई को हम लोग पुट कर दिए r कॉस थीटा, r कैपिटल R कॉस थीटा, और b साइन फाई को पुट किए r साइन फाई में। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि इक्वेशन को छोटा करना है, फर्स्ट पॉइंट। और ये कैपिटल R क्या है, ये जो रिजल्टेंट यहाँ पर सुपरिम्पोज्ड वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है R। ठीक है, R साइन b साइन थीटा, यहाँ पर R कॉस थीटा, यहाँ पर R साइन थीटा होगा, थीटा। ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ये वैल्यू पुट जो कर रहे हैं ध्यान से देखना है, तो याद रखने के लिए कॉस कॉस, साइन साइन, एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा इसीलिए याद रखना, कॉस के लिए R कॉस थीटा, साइन वाले टर्म के लिए R साइन थीटा। अब रिजल्ट, अब यहाँ पर यही वाला वैल्यू, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो y बिकम्स R साइन ओमेगा टी कॉस थीटा यहाँ पर, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, इसका वैल्यू, ये सब का वैल्यू हम उठा के यहाँ पुट कर दिए। तो अल्टीमेटली क्या है मेरा, y इज इक्वल टू R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब यह साइन a प्लस बी का फॉर्म ऑलरेडी है, उसको रिवर्स कर दिए,
तो साइन ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, ओमेगा टी प्लस थीटा, आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन जो आया सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को बोलेंगे, सिंपल, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर। ये वाला मेरा इक्वेशन आया। ये इक्वेशन क्या है, रिजल्टेंट या सुपरइम्पोज्ड वेव का इक्वेशन हुआ ये। अब मेरा काम क्या है, और फेज डिफरेंस क्या था, थीटा। हम लोग थीटा यहाँ पर फेज डिफरेंस किसका, रिजल्टेंट वाले में जो सुपरइम्पोज्ड वेव है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये देखना है, ऐसा कंडीशन निकालना है जो ब्राइट जहाँ पर हो रहा है, डार्क जहाँ पर हो रहा है। तो ब्राइट का मतलब इंटेंसिटी ब्राइट, डार्क मतलब इंटेंसिटी डार्क, इंटेंसिटी कम लेस। ब्राइट मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम, डार्क मीन्स इंटेंसिटी मिनिमम। तो इंटेंसिटी के लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी का तो कोई टर्म नहीं है, देयर इज नो टर्म ऑफ द इंटेंसिटी। लेकिन हमको मालूम है इंटेंसिटी जो है दैट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इसीलिए हम लोग एम्पलीट्यूड को निकालेंगे पहले। कैसे निकालेंगे देखिए, इक्वेशन 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिए, ए प्लस बी इतना इतना। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तब देखते हैं क्या आता है। इसको एक्सपेंड करना होगा। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए दूसरे शीट में, अब यहाँ पर ये देखना है, अब स्क्वायर, तो ये मेरा आर का वैल्यू इतना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, इतना आ गया। ये हुआ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन। उसके बाद ये जो थीटा जो हम लोग फेज डिफरेंस था यहाँ पर, इसका वैल्यू निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दिए। बाई डिवाइडिंग tan थीटा यहाँ पर 4/3 कर देंगे। ये किसको डिवाइड कर देते, 4/3 कर देंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन फाई बाई ए प्लस बी कॉस फाई। ये तुम्हारा फेज एंगल रिजल्टेंट। ये देखिए ये क्या आया, थीटा जो है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इतना हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट वेव एंड द फर्स्ट वेव। पहला वाला वेव और रिजल्टेंट के बीच का ये फेज डिफरेंस है। ये दोनों एक्सप्रेशन हम लोग निकाल दिए। अब ये दोनों एक्सप्रेशन निकालने के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब उसके बाद देखिए इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। अभी हम बोले थे इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, आई आर सफिक्स दे दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड क्या रिजल्टेंट का था, आर स्क्वायर। तो आई आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम अगर इज इक्वल टू देंगे तो कॉन्स्टेंट देंगे के आर स्क्वायर। तो आई आर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ठीक है, ये कहाँ से आया, आर स्क्वायर का वैल्यू, ये इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आई आर इक्वल टू इतना, ये वाला इक्वेशन आया। और साथ में यहाँ पर इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos फाई इतना आएगा। अब यहाँ पर आई ए को हम लोग, अगर आई ए क्या है, फर्स्ट वेव जो था उसका इंटेंसिटी, और फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, ए, वेव 1 का, और वेव 2 का इंटेंसिटी की एम्पलीट्यूड कितना था, बी। इंटेंसिटी मान लेते हैं इसका आई ए कर दिए, तो आई बी कर दिए। तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो आई ए इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, आई बी इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, तो यही वाला चीज़ हमने यहाँ पुट किए हैं। इतना हो गया आई ए डायरेक्ट इतना, ये तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए आई ए, यहाँ पर मेरा क्या था, यहाँ पर आई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई ए बाई के प्लस आई बी बाई के प्लस इतना आया आई ए बाई के अंडर रूट आई बी बाई के इंटू कॉस फाई। ये कैसे आया, समझ में आया ये वाला चीज़।
आई ए बाई के, आई बी बाई के, यहाँ तो ए स्क्वायर था ना, तो ए स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे तो क्या आई ए बाई के हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह आई बी बाई के हो जाएगा वैसे। और यहाँ पर अब ए था तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से आई ए बाई के इज इक्वल टू ए स्क्वायर, केवल ए लिखना हो तो ये अंडर रूट हो जाएगा, इसीलिए ऐसा इंटू कॉस फाइव। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आई आर बाई इतना, ये आई आर स्क्वायर नहीं आई आर होगा, आई आर स्क्वायर इतना। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दिए, तो आई आर कितना आ गया, आई ए प्लस आई बी प्लस 2 अंडर रूट के कैंसिल हो गया था इधर से, 2 अंडर रूट आई ए आई बी कॉस थीटा इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन आया। अब ये जो इक्वेशन आया, दैट इक्वेशन इज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव आई आर, और यहाँ पर इस फैक्टर को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस फैक्टर, 2 अंडर रूट आई ए आई बी कॉस थीटा इंटरफेरेंस फैक्टर। अब हमको ये कंडीशन निकालना होगा कि आई आर जब मैक्सिमम है, आई आर जब मिनिमम है, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव मीन्स ब्राइट फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव मीन्स डार्क फ्रिंज, इसको क्या बोलते हैं, ये फ्रिंज बोलते हैं। ये ऐसे बना था, देखो फ्रिंज बना, ये ब्राइट है, ये वाला डार्क है, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, लाइक दैट। तो कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट वाला ब्राइट फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव मीन्स डार्क फ्रिंज, ठीक है। अब हमको कंडीशन निकालना होगा कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो आई आर जब मैक्सिमम होगा तभी कंस्ट्रक्टिव होगा। तो आई आर मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, इंटरफेरेंस फैक्टर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आई आर इज मैक्सिमम इफ कॉस थीटा इज मैक्सिमम। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, और यहाँ पर कॉस थीटा का कौन सा वैल्यू +1 होता है, cos 0, cos 2 पाई 4 पाई प्लस माइनस ऐसा करके। तो हम लोग फाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0 इतना इतना इतना। अब फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब इस जनरल वैल्यू 0 2 पाई 4 पाई है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस n 2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2, ये इसको बोलेंगे क्या, जनरल वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू n 2 पाई आया, तो हम लोग क्या कंडीशन आया, कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इफ द फेज डिफरेंस फाई, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सुपरइम्पोजिंग वेव्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ये दैट इज द कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस ये कंडीशन आया, फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस n 2 पाई। फिर से देखिए इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज कहां पर बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सुपरइम्पोजिंग वेव्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ये फेज डिफरेंस का टर्म है। अब पाथ डिफरेंस का टर्म है, बताए थे अभी वही, ये अगर ये लैम्डा तो फेज कितना होता है 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। लैम्डा बाई 2 पाई, फेज डिफरेंस कितना आया था 2n पाई 2n पाई, ये 2 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, क्या आया प्लस माइनस n लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस के टर्म में ये आया इतना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लैंग्वेज में, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी मैक्सिमम at those points on the screen where the path difference ये path difference between the two interfering waves is an integral multiple of lambda, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है।
दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। अब यही वाला कंडीशन को फिर हम अप्लाई करेंगे। cos फाई अगर 1 हो गया तो आई मैक्स इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। cos 0 1 होता है, उसको 1 कर दिया मैक्सिमम, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर आई मैक्स कितना हो जाएगा, इतना हो गया। तो हम लिख सकते हैं आई मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आई ए प्लस आई बी होल स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये कौन सा कंडीशन है? ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है। ये फेज डिफरेंस के टर्म में आया, ये पाथ डिफरेंस के टर्म में आया। कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन। उसके बाद आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां की हमको डार्क फ्रिंज मिल रहा था। आई आर मिनिमम, जब मिनिमम हुआ तभी ना डार्क फ्रिंज हुआ। मिनिमम तो cos फाई इंटरफेरेंस फैक्टर, cos फाई का मिनिमम वैल्यू -1, तो फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 5 पाई। इसको हम लोग जनरल, फिर यहाँ पर जनरल वैल्यू लिखेंगे। फाई इज इक्वल टू कितना हो जाए, प्लस माइनस n प्लस हाफ इंटू 2 पाई जनरल वैल्यू। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये सब आएगा मेरा, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई, जैसे n इज वेयर n इज कल टू 0 1 2 3 4 लाइक दैट, 0 पुट किए तो क्या आएगा, पाई। 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 2 2 n प्लस 1 3 पाई। इस तरह का सब ये पूरा वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज द जनरल वैल्यू, दिस और दिस। तो कंस्ट्रक्टिव तो हो गया था, डिस्ट्रक्टिव में ये समझ में आया। इतना मिनिमम वैल्यू क्या होता है कॉस का माइनस, तो फाइव इज इतना, ये आ गया फेज के टर्म में। अब पाथ डिफरेंस के टर्म में क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस को λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस कितना आया था, अभी आया 2n प्लस 1 इंटू पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई। इसका वैल्यू यहाँ पुट किए कि 2n प्लस 1 λ/2। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2। तो यहाँ पर भी वही सेम लैंग्वेज में कि हमको डिस्ट्रक्टिव, वी विल गेट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और द डार्क फ्रिंज कहाँ पर मिलेगा, इफ द पाथ डिफरेंस इज odd integral multiple of λ/2, यही वाला चीज। वहां पर हमको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा डार्क फ्रिंज मिलेगा उस पोजीशन पर। अब यही वाला डार्क -1 होता है cos फाई में, जो इक्वेशन है इंटरफेरेंस फैक्टर, सो -1 हम इसका उसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई मिनिमम इज इक्वल टू इतना, आई मिनिमम इतना अंडर रूट आई ए माइनस अंडर रूट आई बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। आर मिनिमम कितना हुआ, ए माइनस बी, ठीक है। अब ए अगर बी के बराबर हो, ए अगर बी के बराबर हो मीन्स दोनों एम्पलीट्यूड अगर सेम है, तो आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2a ए प्लस बी। हम लोग जानते हैं ना, आर इज इक्वल टू, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या था, a प्लस बी, तो ट्वाइस ए हो गया। और आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 4 इंटू आई नॉट, उसी इक्वेशन से। और मिनिमम अगर है तो उस केस में a माइनस, हम लोग मिनिमम या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आर इज इक्वल टू ए माइनस बी था। दोनों अगर सेम है तो a माइनस ए 0, आई मिनिमम 0। तो हम लोग आई मैक्सिमम कितना हो रहा है, 4 इंटू आई नॉट, आई मिनिमम कितना हो रहा है, 0। इसीलिए जो जहाँ पर डार्क फ्रिंज है उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम वाले में चला जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट इज द इंटरफेरेंस, यही इंटरफेरेंस है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी का इंटरफेरेंस का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे।